بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر ہے رفت سراج، اس کی یہ 52 ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ چند لمحوں بعد ہی روپا دیوی ماما کو ڈھونڈتی ہوئی بوکھلائی ہوئی کمرے میں آئی۔ گولی وجی ہے اینا نو کی ہویا سی ماما؟ تو سیرے کرتی پھر تجھے کیا ہوش نہیں تجھے کہ حویلی خالی پڑی ہے؟ جیسی تو ہے ویسا تیرا مرد، دونوں جانے کہاں گم رہتے ہیں؟ ماما نے جھاڑ پلائی۔ بابا نے سیاسی اندرو گولی چلی ہے، میں تو ڈنگروں دی گھر پٹھے لین گئی سی ماما، وہ مجرموں کی طرح سر جھکا کر بولی۔ اس نے 2 بھیڑیں پالی ہوئی تھی، غالباً انہی کے لیے چارہ لینے گئی تھی۔ متربہ کے بستر پر خون دیکھ کر وہ خود ہی سمجھ گئی تھی کہ حادثہ کس کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا دیکھ خان آتے ہوں گے، انہیں لے کر سیدھی ادھر آ۔ ماما نے اسے روانہ کر دیا، جبکہ وہ ماما سے تفصیلات جاننے کے لیے بے چین ہو رہی تھی اور بہت فکر مندی سے متربہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اے زندہ ہے کہ مر گئی؟ وہ بہت احمقانہ انداز میں پوچھنے لگی۔ خاک پڑے تیری عقل پر، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں۔ زندہ ہے تو جا یہاں سے۔ ماما کا دل کانپ گیا، سچ مچ اسے غصہ آ گیا تھا۔ روپا دیوی جلدی سے باہر نکل گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد بابا صاحب ڈاکٹر کے ہمراہ حویلی میں داخل ہوئے۔ باغ میں بچے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ ان کا ٹیوٹر گرمیوں میں سب کو وہیں باغ ہی میں پڑھاتا تھا۔ کچھ دیر قبل ہی اس نے بچوں کو چھٹی دی تھی اور خود گیٹ سے باہر کھڑا ہوا تھا۔ دلاور علی خان نے چٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی تھی، غالباً وہ اس کے چہرے پر کچھ پڑھنا چاہ رہے تھے۔ منیر صاحب خیریت؟ آپ ابھی تک؟ جی خان، آج ادھر کوئی حویلی میں نظر ہی نہیں آیا۔ اجازت کے لیے آپ کا انتظار تھا۔ تیمور خانہ شاید آرام کر رہے ہیں، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ تم۔ انہیں اس کی بے خبری کی طرف سے اطمینان ہوا۔ راہداری میں رئیسہ بیگم بڑی بےتابی سے ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ باپ کے ساتھ ڈاکٹر کو دیکھ کر فوراً چہرہ ڈھانپ کر آڑ میں ہو گئی۔ اپنے کمرے میں ہے وہ بابا صاحب، وہ مطلع کر کے زینے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تیمور نے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ ایک ثانیہ کو رکے، پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھ گئی۔ ڈاکٹر ابتدائی طبی امداد کے بعد فوراً ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی تھی کہ خون بہت بہہ چکا ہے۔ ایک لمحے کو تو خان دلاور علی خان سوچ میں پڑ گئے۔ سیاسی صورتحال خاصی سخت جا رہی تھی۔ ایوب خان کی حکومت ختم ہو چکی تھی، یحییٰ خان مسند اقتدار پر ممتکن ہو چکے تھے۔ ایک جرنیل گیا تھا، دوسرا آ گیا تھا۔ سیاسی فضا بہت مبہم تھی۔ اختیار و رسوخ کا استعمال بہت احتیاط کا تقاضا کر رہا تھا۔ بیوروکریسی کے اہم مورے جگہ بدل چکے تھے۔ فوجی حکومت میں اثر و رسوخ رکھنے والے بھی کم اعتماد ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ہوش میں آ کر کچھ بول پڑی، اب تو اسے انتقام لینے کا زیادہ اچھا موقع مل رہا ہے۔ بہتر ہے کہ اسے مرنے دیا جائے، اس طرح قصہ ہی تمام ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ مر گئی تو اس کی خطرناک ورثہ جاگیرداروں کو کسی مصیبت میں نہ پھنسا دے۔ انہیں بہت دور تک سوچنا تھا۔ وہ کم عمری سے جاگیر کا انتظام چلا رہے تھے، وہ کوئی پہلو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، جبکہ متربہ تو ایک مسئلے کی شکل میں ثابت ہو چکی تھی۔ کیا سوچنے لگے خان صاحب؟ جتنی دیر ہوگی اتنی مشکل ہو جائے گی۔ ڈاکٹر انہیں سوچ میں ڈوبا دیکھ کر قدرے حیران ہوا۔ کہاں تو انہیں اتنی جلدی تھی کہ 1 منٹ کی تاخیر برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ مالک ہے۔ اچھا چلے ہیں ماما، ہم نوکروں کو بھیجتے ہیں۔ تم روپا سے کہہ کر کوئی ہلکا پلنگ کمرے میں منگوا لو اور اسے پلنگ پر لٹا دو اور چادر ڈال دو۔ وہ پلنگ اٹھا کر پورچ میں لے آئیں گے۔ ہم اللہ بخش سے کہہ کر بڑی گاڑی نکلواتے ہیں۔ وہ چھڑی ٹکاتے ہوئے راہداری کے موڑ پر غائب ہو گئے۔ ڈاکٹر ان کے پیچھے چل پڑا تھا۔ رئیسہ بیگم اوپر پائنتی میں ماما روپا دیوی کی طرف سے کیسی اطلاع کا انتظار کر رہی تھی۔ خالہ تو اماں جی کی خراب طبیعت کے پیش نظر ان کے ساتھ تھی۔ اماں جی کو سبھی نے ہاسپٹل جانے سے منع کیا تھا، مگر وہ کیسے رک سکتی تھی؟ ان پر تو ایک قیامت نازل تھی۔ تیمور علی خان نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، بس فون سے لگے بیٹھے تھے۔ اب تو دونوں بہن بھائی متربہ کے موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ رئیسہ بیگم نے البتہ یہ ضرور بتایا تھا کہ بابا صاحب متربہ کو لے کر ہاسپٹل گئے، جبکہ تیمور علی خان نے جواب میں یہ پوچھا تھا کہ ناز بھابھی کی طبیعت کے بارے میں بابا صاحب نے کیا بتایا۔ رئیسہ بیگم کو یہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، پھر وہ کیا جواب دیتی۔ کتنی دیر دونوں بہن بھائی خاموش بیٹھے بس ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کرتے رہے تھے۔ تب کہیں جا کر رات 11:15 بجے گاڑیاں حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں گاڑیاں رکنے کی آواز پر فوراً باہر آ گئے تھے۔ سب سے پہلے اماں جی خالہ سولہ آنے کے ساتھ اگلی گاڑی سے اترتی نظر آئی۔ رئیسہ بیگم بےتابی سے ماں کی طرف بڑھی۔ کیسی طبیعت ہے اماں جی ناز کی؟ اچھی ہے، ٹھیک ہے، ہوش میں ہے۔
वो नढाल से अंदाज में गोया हुई। तैमूर अली खान इतना सुनते ही आगे बढ़े और ड्राइवर से चाबी मांगने लगे। बेटे कहाँ जा रहे हो? बहुत रात हो गई है, सुबह चले जाना। वो पलट कर तैमूर अली खान से मुखातिब हुई। इसे रोको रईसा, कहीं ऐसा ना हो कि इसे देखकर नाज की हालत फिर बिगड़ जाए। वो बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी थी। तुम्हारे बाबा साहब आ गए क्या? पता नहीं अस्पताल से एकदम कहाँ चले गए थे। हाँ तैमूर, अम्मा जी ठीक कह रही हैं, रात हो रही है, सुबह चले जाना। ये रात सुबह की नज़ाकतों का माहौल नहीं है बीबी जान, कमाल लोग हैं आप। वो झलाए और झटके से कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। चौकीदार ने गाड़ी की लाइटें ऑन होती देखकर फुर्ती से फाटक वाह कर दिया। तैमूर अली खान धन से गाड़ी ले उड़े। वो सब देखते रह गए। पहले तो डॉक्टर ने उनसे दरख्वास्त की थी कि अभी वो मरीज़ा के पास न जाए, लेकिन जब उन्होंने कतई अंदाज में कहा कि वो सिर्फ उन्हें देखना चाहते हैं और कोई बातचीत का इरादा नहीं है, तो थोड़ी सी पसोपेश के बाद उन्हें नाज के कमरे में जाने की इजाज़त मिल गई। वो कमरे में दाखिल हुए तो देखा नाज चतलेटी छत को घूर रही थी। ड्रिप लगी हुई थी। नर्स कुर्सी पर बैठी एक टिक दीवार की सिम देख रही थी। तैमूर अली खान को अंदर दाखिल होता देखकर वो चौंक कर खड़ी हो गई। आप? जी हम परमिशन से आए हैं, आप चाहें तो यहीं तशरीफ़ रखिए, चाहे तो कमरे से बाहर जा सकती हैं। वो खुश्क अंदाज में कहकर बेड के नज़दीक आ गए। कैसी हैं भाभी आप? नाज़नीन ने खाली खाली नज़रें उनके चेहरे पर टिकाई। नज़र का अंदाज़ बता रहा था कि उसका दिमाग हाजिर नहीं है। खासी देर खामोशी छाई रही। क्या फील कर रही हैं? वो बहुत धीमे आवाज़ में पूछ रहे थे। नाज़नीन ने फिर उनके चेहरे की सिमत खाली खाली निगाहें दौड़ाई। ओके आप आराम कीजिए, हम यहाँ कुछ देर बैठते हैं, फिर चले जाएंगे। वो कुर्सी पर बैठ गए। नाज़नीन उनकी तरफ उसी साबका अंदाज में देखती रही। तैमूर अली खान ने नज़र झुका ली। जाने कितना वक्त गुजरा था, 10 मिनट या 15 मिनट। बल आखिर मुसलसल खामोशी ने उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। वो उठ खड़े हुए। अच्छा हम चलते हैं, सुबह आएंगे। उन्होंने कदम बढ़ा दिए। तैमूर वो दरवाजे के करीब पहुंचे तो नाज की आवाज़ ने उन्हें बुरी तरह चौंका दिया। जी। वो नहायत तेज़ी से उसके बेड के करीब दोबारा आए। तैमूर उसकी आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। जब इंसानों के दिलों में वसअतें नहीं होती तो वो अपने घर का माहौल इस तरह का क्यों बनाते? सगे भाइयों से बीवी को पर्दा क्यों नहीं कराते? अंदर इतनी बेअतबारियाँ होती हैं तो जाहिर क्यों नहीं कर देते कि एक लम्हे में बावकार औरत को कुतिया बना देते हैं? क्यों आए हैं आप यहाँ? हम इद्दत में हैं, इतनी उम्रदार औरतें हैं हवेली में, किसी ने नहीं समझाया आपको? हवेली के इसी दोगलेपन ने आज हमें इस मकाम तक पहुँचाया। वो कलफ लगा हुआ ब्यूरोक्रेट यावर अली खान, उससे अच्छा तो वो अस्तबल का जाहिल सा साईं है जिसकी बीवी तन्हा खेत में काम करती, रात नहर से पानी लेकर आती है, गांव से शहर को तांगा वाले के साथ बच्चा गोद में लेकर चली जाती है, फैज़ो पंसारी के साथ घंटों बातें बनाती है, और वो है कि उसके नाज उठाते नहीं थकता। ये एतबार के एतमाद के रिश्ते होते हैं। तैमूर अली खान ज़मीर की आवाज़ के बंधन होते हैं। ऐसा महसूस होता था कि वो दिलो जान से भड़ास निकाल रही है। तैमूर अली खान तो पत्थर के बुत की तरह साकित और सामित हो गए थे। हम इद्दत में हैं, जैसे हथौड़े की ज़रब उनके दिमाग पर पड़ रही थी। क्या मतलब है आपका? वो बामुश्किल गोया हुए। मतलब बताने को हवेली में लोग कम हैं। आप चले जाइए यहाँ से, ये हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात होना चाहिए। नाज़नीन ने बाजू आंखों पर रख लिया। भाभी। वो हैरत से उसे देखने लगे। अब मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ आप अपने भतीजे और भतीजी के चचा हैं और बस जाइए आप यहाँ से। वो बेजार कुल लहजे में गोया हुई। अब हमसे इस तरह क्यों बिहेव कर रही है? हमारा क्या कसूर है? अजीम सदमे से वो चूर चूर हो गए। आवाज़ बामुश्किल हलक से निकल रही थी। कसूर तो मेरा है, किन बेबसीरत लोगों में आप हंसी थी। देखिए अजीम ज़िल्लत से आंखें तक पथरा गए। अब इनमें कोई आंसू नहीं। वहमों ने इतना रुलाया कि हकीकत पर रोने को आंसू नहीं बचे। देख रहे हैं आप मेरा हौसला? कभी भाई से मुलाकात हो तो कह दीजिएगा, क़यामत का कर्ज चढ़ाया है, क़यामत के दिन नहीं उतारूंगी, तब तक वो मेरे मुजरिम है। इंशाल्लाह सुख की आस में उम्र तमाम हो जाएगी मगर सुख नहीं मिलेगा। भाभी, अब अगर आपने मुझे भाभी कहा तो ये गिलास तोड़कर अपनी रग काट लूँगी। उसने बहुत पुरसुकून अंदाज में धमकी दी। तैमूर अली खान बेबसी से उसकी शक्ल देखने लगे। फिर क्या कहें अम्मा? वो किस कदर शकीस्तगी से पूछ रहे थे। अपने भाई की पसंद की कोई गाली दीजिए। वो अजियत भरी आवाज़ में गोया हुई। भाई भाई है, हम हैं, आप भी जानती हैं ये ज़्यादती है। वो तड़प कर बोले। तैमूर मैं आपको ख़बरदार कर रही हूँ, मेरा ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने वाला है, कुछ हो जाएगा। इससे पहले आप यहाँ से चले जाइए प्लीज़। तैमूर अली खान घबराकर बाहर निकल गए। फिर वो कहीं ठटके बगैर ठहरे बगैर तेज़ी से अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। हो तो वो सब हो गया,
मुतरबा खूब निपटेंगे तुमसे। और यावर भाई, भाभी तो भाभी, हम भी क़यामत तक आपको माफ़ नहीं करेंगे। हमारा आपका आज से कोई ताल्लुक़ नहीं। यावर अली ख़ान नाम का कोई भाई नहीं है। आपने भाभी को नहीं, हमें गाली दी है, ऐसी नंगी गाली जिस पर कत्ल जायज़ हो जाए। हम कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी भर आपका चेहरा देखने के गुनहगार ना हो। अगर कभी देख लिया तो दोबारा वज़ू करेंगे। भाई ऐसा नहीं होता, जो ऐसा होता है वो भाई नहीं होता। तैमूर अली ख़ान की रग रग में आग भड़क उठी थी। अम्मा जी कलेजा थामे बैठी थी। यूँ महसूस होता था कि अब हद गुजरी और उन्हें कुछ होने वाला है। रूपा देवी उन्हें दूध देने आई थी और अपनी हमाकत में उन्हें मुतरबा वाले हादसे की इत्तला कर गई थी। उन्होंने रईसा बेगम को बुला भेजा था। उनकी हालत गैर हुई जा रही थी। रईसा बेगम थके थके कदमों से माँ के कमरे में दाखिल हुई। आपने बुलाया अम्मा जी? वो माँ के करीब बिस्तर पर बैठ गई। हाँ, तुम लोग क्या हमें बच्चा समझते हो जो इतनी अहम बातें छुपाते हो? वो नाराज़गी से गोया हुई। ऐसी तो कोई बात नहीं अम्मा जी, आप तो वैसे ही परेशान थी। सोचो और क्या परेशान करें। उन्होंने वजाहत की। तुम्हें मेरी कसम, ये बताओ वो जिंदा है? खून तो नहीं हो गया मेरे बेटे से? वो बेकरारी से पूछ रही थी। अल्लाह ना करे अम्मा जी, वो तो शुक्र करे घर में मैं मौजूद थी, वरना तो तैमूर पर वाकई खून सवार था। मेरे तो काबू ही में नहीं आ रहा था। वो यासियत से बोली। तो उसे तुमने बता दिया कि उनकी आवाज़ भरा गई। मैं कैसे बता सकती थी? बाहर मामा ही से सवाल जवाब हुए थे, उससे ही कुछ नतीजा निकाल लिया होगा। पहले तो मुझसे पूछता रहा, फिर वो बोलते बोलते रुक गई। फिर क्या? अम्मा जी ने बेताबी से पूछा। फिर क्या अम्मा जी? आ गए तो आपको पता चल गया है। रईसा बेगम जैसे थकन से चूर चूर थी। बच तो जाएगी ना? गोली कहाँ लगी? वो खौफजदा अंदाज में बेटी को देखने लगी। बस अल्लाह ने करम किया, मेरे खींचा तानी में निशाने ख़ता होते रहे। बस 1 मिनट की अगर देर हो जाती तो वो तो पक्का निशानेबाज है। रईसा बेगम ने धीमी आवाज़ में बताया। बताओ, ना हक किसी का खून सा लग जाता? अम्मा जी ने कुछ सोचते हुए कहा। खैर, ना हक तो नहीं, हशर तो उसका बहुत बुरा होना चाहिए। चारों तरफ आग लगा दी है मनहूस ने। अल्लाह करे मरते दम तक सुकून की सांस को तरसे। ज़मीन उसे ना कबूल है, जन्म जन्म में कीड़े पड़े। बस ये कहिए, अल्लाह ने मेरे भाई के गंद खून नहीं डाला लगाया। यूँ ना कोसो, पहुँच जाएगी अपने अंजाम को। तुम क्यों अपनी ज़बान ख़राब करती हो? बदी का तो यूँ भी अंजाम बुरा ही है, कुदरत का असूल है। अम्मा जी अपनी फितरत से मजबूर थी। टहल कर बेटी को टोकने लगी। ये भी फितरत का असूल है अम्मा जी। इंसान को दुख पहुँचता है तो उसके मुँह से फूल नहीं चढ़ते, बद्दुआएँ ही निकलती हैं दुख पहुँचाने वालों के लिए। बर्बाद हो गए हम सब। रईसा बेगम नाराज़ लहजे में बोली। अब मर भी जाए तो हमें क्या फ़ायदा है? जो तबाही होना थी वो हो चुकी। इसलिए नागिन ने, रईसा बेगम फूट फूट डस लिया नागिन ने। रईसा ने फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा जी अपने आंसू रोक कर बेटी की कमर सुलाने लगी। मेरी तरफ भी देखो रईसा, अब मर जाने को जी चाहता है, मर जाने को जी चाहता है। कट गए सुख के दिन, अब अंधेरे में जाने कहाँ तक चलना है। मेरी बेटी, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे तो हौसला दो। उनकी आंखों से अश्क जारी हो गए। रईसा बेगम माँ से लिपट गई। दोनों तरफ तो गयानी आ गई। यूँ बिलक बिलक कर रोई, गोया घर में कोई फौतगी हो गई हो। हम लुट गए अम्मा जी। रईसा बेगम की चीखें निकल गई। अम्मा जी मेरे भाई, हाय अम्मा जी मेरे भाई। दोनों रो रही थी। आंसू पूंछने वाला कोई ना था। अरे जैतून बानो, क्या मिल गया तुझे? या अल्लाह, मेरे किस गुनाह की सज़ा है? अम्मा जी सिसकियाँ भरने लगी। मामा किसी काम से कमरे में आई और उल्टे पाँव भाग गई और बसीर अली ख़ान के कमरे का दरवाज़ा धड़धड़ाया। वो चंद मिनटों बाद अम्मा जी के कमरे में थे। उनकी बीवी भी उनसे के पीछे आने लगी तो उन्होंने वहीं कमरे में रुकने की ताकीद की। अभी उनके और हवेली के दरमियान बहुत से हिजाब थे। उनके सामने खुलकर बातें नहीं होती थी। क्या हुआ बीबी जान, चुप हो जाइए, अम्मा जी की हालत ख़राब हो जाएगी। उन्होंने मुश्किल से माँ बहन को जुदा किया। लो, क्या तुम्हें नहीं पता क्या हो गया? रईसा बेगम कराही। मगर इस तरह भी तो बात नहीं बनेगी बीबी जान। वो बहन के पहलू में बैठ गए। बात तो बिगड़ गई मेरी जान, अब नहीं बनेगी। वो बसीर अली ख़ान के शाने से पेशानी टिकाकर फिर रोने लगे। मेरे भाई, अजीम दुख, अजीम रुसवाई, ज़रा सोचो क्या हो गया हमारे साथ। इस तरह परेशान होने से भला कुछ हो सकता है? हौसला कीजिए, अम्मा जी की तरफ देखिए, उन्हें हिम्मत दिलाइए बीबी जान। बसीर अली ख़ान ने बड़ी बुर्दबारी से समझाया। मुतरबा का भी इतना कसूर नहीं है बसीर, जितना कि यावर का है। बहुत खुदगर्ज साबित हुआ। कुर्बानी का जज्बा होता तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेता। हमारी खातिर, अपने बच्चों की खातिर इतना बड़ा कदम उठा लिया, उसे किसी का ख्याल नहीं आया, अपनी बूढ़ी माँ का भी नहीं। वो फिर से रो पड़ी। बसीर अली ख़ान की कुव्वत गवाही जैसे सल्ब हो गई। वो बहन का शाना सुलाने लगे।
सारी जगह रहन रख कर भी नुकसान पूरे नहीं हो सकते। ज़रा सोचो बसीर। रईसा यूँ दुहाई न दे बेटी, मेरा दिल रुक जाएगा, मेरी खातिर चुप हो जा बेटी और मुझे कुछ हो जाएगा। अम्मा जी ने बड़ी हिम्मत से अपने आंसू रोके। देखो तैमूर आता होगा, खुद को संभालो, जाने क्या कह सुन हुई होगी वहाँ, किस हाल में घर आए। जाओ तुम अपने कमरे में, मामा से कहना तुम्हारे बाबा साहब आ जाए तो मुझे बता दे, पता नहीं किस परेशानी में होंगे। चलो उठो, शाबाश बेटी। अम्मा जी कितनी हिम्मत का मुजाहरा कर रही थी जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं हो सकती थी। बसीर तुम तैमूर का रास्ता देखो, भाई को संभालना होगा बेटे, बड़ी गर्दिश है उस पर। ठीक है अम्मा जी, आप फिक्र ना करें, इधर बैठक में हूँ मैं, आप आराम कीजिए। आइए बीबी जान, आप भी आराम कर लीजिए। बसीर अली खान ने उन्हें ज़बरदस्ती उठाया तो वो उठ खड़ी हुई। अम्मा जी अपनी नमाज की चौकी की तरफ बढ़ गई। उनकी चाल से लगता था कि वह खुद को घसीट रही हूँ। बसीर अली खान बहन को अपने बाजू के घेरे में लेकर कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा जी यही समझी कि रूपा देवी है। उन्होंने रुख मोड़े बगैर ही अंदर आने की इजाज़त दी। वो हनूज जाए नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ तो आई मगर आने वाला कुछ बोला नहीं। कारपेट पर कदमों की चाप तो महसूस होती थी, हुई नहीं। वो फ़ौरन ही बोल पड़ी, क्या बात है, आ गए तेरे खान? मैं अम्मा जी। तैमूर अली खान की आवाज़ नहायत धीमी और अफसरदा थी। उनकी हैरत की इंतहा न रही जब अम्मा जी जवाब में मुतवज्जो होने के बजाय दोबारा तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। वो बेकरार से अंदाज में चौकी के बिल्कुल साथ कारपेट पर बैठ गए। एक तो आपके कमरे में दाखिल होते हुए यूँ महसूस होता है गोया मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। तबीयत खुद ब खुद मोहतात हो जाती है और अगर इस पर आप कलाम ना करें तो आने वाले की तो हिम्मत ही जवाब दे जाती है। नाराज़ हैं आप हमसे? हमारी हिम्मत जवाब नहीं दे सकती। बड़ी हिम्मत दी है तुम्हें अल्लाह ने। तुम तैमूर अली खान हो, खौफनाक दरिंदों पर गोली चलाते हो, खंजर से उनका सीना चाक करते हो, उनकी खाल उतारते हो, फिर अपना ख़ास शिकार का कमरा उस खाल से सजाते हो, मरते हुए शेर पर टांग रखकर तस्वीर खिंचवाते हो, फिर उसे बड़ी सारी बनाकर शिकार वाले कमरे की दीवार पर लगाते हो। मेल जूल वाले तुम्हारी बहादुरी की दाद देते हैं, तुम्हें बहादुर मशहूर करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे जवाब दे सकती है? अम्मा जी यूँ ना करें, ज़ालिमों की इस भीड़ में आप शामिल ना हो प्लीज़। अम्मा जी हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। अम्मा जी समझिए, इतना बड़ा दुख है, दिल चाहता है ख़ुद को शूट कर लें। इससे ज़्यादा अम्मा जी मैं बर्दाश्त की ताकत नहीं थी। उन्होंने बेइख्तियार उनका सर अपने सीने से लगा लिया। क्या ज़रूरत थी उस पर गोली चलाने की? कसम खा लिया मेरे बेटों ने माँ को जी भर के दुख देने की। वो आंसू पीते हुए कह रही थी, आपको क्या मालूम हमें कितना अफसोस है उसके ज़िंदा बच जाने का। वो फिर इश्तियाल में आने लगे, बेटे खून खून होता है, ऐसी बातें नहीं छुपती, ऐसी हरी भरी उम्र है, उससे काल कोठरी के नाम लगा देना चाहता है। आज पहली जैसे बात नहीं है। मुसलमानों का इतना बड़ा लीडर इसे किस तरह घेरा, जिसके इतने चाहने वाले हैं। याद नहीं मौलाना रूमी का मामला? जागीरदार बहुत पहुंच वाला होता है मगर दुश्मन भी ऐसे ही मौक़ों से फ़ायदा उठाते हैं। इंसान का खून करना कोई खेल है? तुमसे ज़्यादा लंबे हाथ हैं उसकी माँ के। इस मुल्क का बाशिंदा तक उसका गाना सुनता होगा। मौलाना की किस्मत अच्छी थी वरना बहुत बुरी तरह घेरे गए थे। फांसी लगा रहा था बादशाह। अरे मैं किस किस के दुख को रोऊंगी, रहम करो मेरे हाल पर। आगे बच्चे दुख बच गए हैं मगर मैं कुर्बान, अल्लाह ना करे मेरे बेटे मुझे अपनी जवानियों पर रोने पीछे छोड़ जाएं। मेरे मुंह में खाक। उनकी आवाज़ आंसुओं में भीगी हुई महसूस होने लगी। अम्मा जी हम इंसान हैं, फरिश्ता नहीं है। बेटे बस मुझ पर रहम करो, हद हो चुकी है अब। आपको क्या पता, आज तो सचमुच मर जाने को जी चाह रहा है। जब हमें नाज भाभी ने कहा कि उन्हें आइंदा भाभी ना कहें। आपको क्या बताएं अम्मा जी? ठीक ही तो कह रही है वो, अब उसके सामने मत जाना, इद्दत शुरू हो चुकी है उसकी। इस वक्त भी रोक रही थी तुम्हें। आह बेटे मुझे सहारा देकर बिस्तर तक ले चलो, हर चीज़ घूमती हुई महसूस हो रही है। उन्होंने तैमूर अली खान का शाना तकरीबन दबोचते हुए कहा। वो एकदम घबरा गए। उनको सहारा दिया और बिस्तर पर लेटाकर जग से पानी गिलास में हंडेला। पानी पी लीजिए अम्मा जी। अम्मा जी ने महज चंद घूंट पिए, दोबारा तकिए पर सर डाल दिया, फिर गहरे गहरे सांस लेने लगी। तैमूर देखना तुम्हारे बाबा साहब आ गए, अब तो बहुत रात हो गई है, जाने किन हालों में है। वो बदिक्कत गोया हुई। अच्छा हम देखते हैं। जाने किस एहसास के तहत उनकी नज़रें झुक गई। आपके पास मामा को भेजते हैं। आपकी तबीयत ठीक तो है ना अम्मा जी? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अपने बाप की खबर करो। जाओ बेटे। वो उलझन भरे अंदाज में कमरे से बाहर निकले थे। हवेली में अगर अनजान आदमी दाखिल होता तो पहला तासुर ये होता कि यहाँ कोई नहीं रहता। सजा सजाया बाग, तराशीदा घास, फूलों के तख्ते,
घने सायादार दरख्त, सफ़ेद संगमरमर के बरामदे और स्तून चमकते हुए जैसे अभी धोए गए हों, स्याही माइल चमचम करते हुए दरवाजे जो मुख्तलिफ सिमतों और गुजरगाहों का पता देते महसूस होते थे। सुर्ख बजरी वाली गुजरगाह जो शानदार पोर्टिको तक जाकर तमाम होती थी। शाम का सुलूनापन बढ़ते ही बरकी रोशनी का नहायत खूबसूरत और मुरतब सिलसिला, सफाई इतनी कि तिनका पड़ा नज़र न आए, इसके बावजूद इतनी गहरी खामोशी और वीरानी थी कि बाज़ औक़ात मकीनों के दिल वहशत से फड़फड़ाने लगते थे। रोशन मुस्तकिल तौर पर हवेली आ गई थी। उनके शौहर वहीं कहीं सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे थे। वो अपनी दोनों बेटियों रूबी और लाली जो गोद में थी के साथ वहीं आ गई थी। इसमें अम्मा जी के इसरार का भी बहुत दखल था। तज़ईन अपने शौहर के अमेरिका चले जाने के बाद ख़ास तौर पर दोनों बच्चों शिनो और हमाद को लेकर मामूल के अंदाज में आ गई थी। उन्हें क्या खबर थी कि किन क़यामत की घड़ियों में उन्होंने हवेली में कदम रखा। हर तरफ रूह का आलम महसूस होता था। हंसी तो बड़ी बात थी, मुस्कुराहटें तक गुम हो गई थी। हर फर्द यूं कान दबाए फिरता नज़र आता था जैसे कोई जुर्म कर बैठा। खाने के वक्त इब्तदाई मरहला बच्चों के सिलसिले में होता, सिर्फ उस वक्त कुछ चहल पहल और शोर महसूस होता था। बच्चों के कमरों में घुसते ही फिर सकूत तारी हो जाता था। सिर्फ बर्तनों की खटर फटर बाकी रह जाती थी। मुतरबा के बारे में खान दिलावर अली खान किसी सवाल का जवाब नहीं देते थे। नाज़नीन कमरे में महसूर होकर रह गई थी। हर कोई उसके पास जाते हुए डरता था। बारी को रोशनी आ रही संभाल रही थी। तैमूर अली खान दिन की रोशनी में दिखाई नहीं देते थे। वो चंद दिनों के लिए लंदन जाना चाहते थे, मगर बाबा साहब ने इजाज़त नहीं दी, बल्कि बहू को खुद फ़ोन करके तसल्ली दे दी थी। यावर अली खान हनूज़ लापता थे। खाला सुलह आने के सर्वे की कटकट सुनाई नहीं देती थी। सर्दने की ना वो किसी के पास बैठी दिखाई देती थी। इन्हीं वहशतों में इद्दत के दिन गुजरते रहे। सिर्फ मामा बिल्ली ही नाज़नीन के कमरे में आती जाती थी, या अम्मा जी 2-3 चक्कर लगा लेती थी, मगर वो बिल्कुल खामोश रहती थी। लिहाजा वो थक कर वापस उठ आती थी। उनकी अपनी तबीयत गिरी गिरी रहती। कभी माँ बेटियाँ इकट्ठी भी हो जाती थी तो यूँ खामोश रहती थी, गोया खामोशी के रास्ते एक दूसरे के हाल से वाकफियत हासिल कर रही हूँ। अम्मा जी की सर्द आहें उन्हें कोई बात करने से रोक देती थी। हाँ, जब उनके दरमियान अम्मा जी नहीं होती थी तो जी भरकर मुतरबा को कोसती थी। रईसा बेगम तो बाकायदा कोसते हुए आंचल फैला लेती थी, फिर बुरी तरह रो पड़ती थी। दूर दूर तक इस वीरानी और खामोशी का तोड़ नज़र नहीं आ रहा था। ज़िंदगी गोया एक जगह ठहर गई थी। बस्ती की औरतों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर रह गई थी। मेहमानों का आना बहुत खलने लगा था। अर्जी मेहमानदारी एक मुसीबत बन जाती। हवेली का हर फर्द चाहता था कि घर में मेहमान ना आए। इद्दत ख़त्म होने में चंद दिन बाकी रह गए तो बाबा साहब ने एक रात तैमूर अली खान को बुलवा भेजा। काफ़ी दिनों बाद दोनों बाप बेटे एक दूसरे के आमने सामने थे। खान साहब इस हादसे के बाद खाना अपने कमरे ही में खा रहे थे। जी, तैमूर अली खान का सर मुजरिम की तरह झुका हुआ था। अभी तक नाज के वालिदैन को इस हादसे की इत्तला नहीं पहुंचाई। अब तुमसे मशवरा करना है कि अब क्या स्टेप लिया जाए। उनके कॉन्टैक्ट का इंतज़ार कर लें जो हम सब में आलिम फाजिल हैं। तैमूर अली खान गोया फट पड़े। खान साहब दायां भ्रू चढ़ाकर झुका सर उठाए बगैर नज़रें उठाए और बेटे के चेहरे का जायज़ा लिया और चंद सानिए खामोश रहे। इस तरह मसलों के हल नहीं निकलते। अब कुछ सोचना है, कुछ करना है तैमूर। मेरे कुछ करने की तो अब इस मसले में गुंजाइश नहीं है। आप बताइए, आप क्या करना चाहते हैं। उन्होंने नागवारी पर काबू पाकर बाप की बात काट दी। तुम्हारा क्या ख्याल है मुनीब अहमद को इस हादसे से मतलब कर दिया जाए। उनके इस दौरान में 2-3 फ़ोन आ चुके हैं, मगर हमने नाज को नहीं बताया। हर मर्तबा आलम ताबी की उनसे बात हुई, उसने कह दिया नाज यावर के साथ सैर करने सवात गई हुई है। हमारा ख्याल है नाज अब उनसे खुद बात करना चाहेगी। वो इतना कहकर खामोश हो गए जैसे कुछ सोचने लगे हो। ज़ाहिर है वो इन्हें यहीं इतला देने के लिए फ़ोन करेगी। वो फिर खामोश हो गए। तैमूर अली खान बात आगे बढ़ने का इंतज़ार करने लगे। कतई मुमकिन है कि इसके बाद वो बच्चों को लेकर युगंडा चली जाए, और हम चाहते हैं कि बच्चे हवेली से बाहर ना जाए। बच्चे जागीर के वारसों में हैं, और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे वारिस की माँ बाहर के किसी आदमी के साथ दूसरा निकाह करे। वो पढ़े हुए समझदार लोग हैं। इस बात का हमेशा ख़तरा रहेगा कि वो कानून के रास्ते से बच्चे हासिल करने की कोशिश करेगी। कुछ हो, हम बच्चे हवेली से बाहर नहीं जाने देंगे। हम अपने खून को दरबदर नहीं होने देंगे। वो इतना कहकर फिर खामोश हो गए और सोच में पड़ गए। हाँ तो ठीक है, बच्चों के नामी ग्रामी वालिद को आने दीजिए, उनका इंतज़ार कीजिए। दिन रात कानून दानों के साथ कटते हैं। बड़ आई साहब मशवरा दे सकते हैं आपको। तैमूर अली खान तलखी से गोया हुए।
یہ جلے پھپولے پھوڑنے کا وقت نہیں ہے تیمور، حقیقت کا سامنا اور مقابلہ کرنے کا وقت ہے۔ آپ کے خیال میں ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ وہ جیسے ضد چو کر پوچھ رہے تھے۔ پھر ایک بے معنی خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ ہمارے ہاں پیچھے بزرگوں کی 2-2 3-3 بیویاں رہی ہیں۔ مرد جوان غنی ہو تو بہت آسانی سے 2 بیویاں نبھا سکتا ہے۔ بہت مشکل بات تھی، بہت مشکل سے کہی تھی۔ تیمور علی خان نے بے تحاشا چونک کر باپ کی سم دیکھا، جیسے انہیں سماعت کا دھوکہ ہوا ہو۔ ان کی تو گواہی ہی سلب ہو گئی۔ ہم نے بہت سوچا ہے تیمور، بڑی راتیں جا کر سوچا ہے۔ دیکھو بہو کے ساتھ زیادتی کی حد ہو گئی ہے، ہمیں مداوع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیجیے بابا صاحب، مداوع ضرور کیجیے، مگر ہم بھی اتنے ہی بے قصور ہیں جتنی کہ ناز بھابھی۔ آپ تو کم سے کم ہمارے ساتھ زیادتی نہ کیجیے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹے بات سمجھنے کی کوشش کرو، خان صاحب نے بڑی نرمی سے کہا۔ بابا صاحب ہمارا جی چاہ رہا ہے ہم بھی یاور بھائی کی طرح لاپتہ ہو جائیں۔ پلیز بابا صاحب، بھائی کی چھوڑی ہوئی کسر میں آپ شریک نہ ہو، ورنہ ہمیں آپ سے عمر بھر کے لیے شکایت ہو جائے گی۔ جو کچھ ہے وہ بھی رسوائی کی بات ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس سے بھی بڑی رسوائی ہے۔ مفادات سے ہٹ کر ذرا سکون سے سوچیے۔ مفادات انسانوں کے لیے نہیں ہوتے۔ ہمیں آپ کی بات سے کتنا دکھ ہوا ہے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اور یہ وعدہ بھی کیجیے کہ آئندہ آپ ہم سے اس طرح کی کوئی بات کبھی نہیں کریں گے۔ بیٹھ جاؤ تیمور، دلاور علی خان کی آواز میں تحکم تھا۔ تیمور علی خان نے بے بسی سے باپ کی شکل دیکھی۔ تم اپنی عمر کے حساب سے ٹھیک ہو، مگر ہماری بات بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ نہ ناز حویلی سے باہر قدم رکھے گی اور نہ بچے، نہ تم غلط ہو نہ یاور۔ جو مجرم ہم اس کا بندوبست کر چکے ہیں۔ یہ رشتہ بہت حساس، بہت نازک ہوتا ہے تیمور۔ اعتبار کی اینٹیں چنتے چنتے بازو شل ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سی اطلاعات مشکوک سمجھ کر نظر انداز کر دی جاتی ہے، مگر اس طرح کی افواہ پر زمانے کو اعتبار کرنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ ہماری طرف دیکھو تیمور، پرکھوں کی محنت ٹھکانے لگ رہی ہے، ہمارا سکھ چین حرام ہو چکا ہے، اس کے باوجود آپ اس کی جان بچا رہے ہیں۔ شکاری کتے چھوڑیے آپ اس پر، ہمارے گلے پر پھندا کیوں کسا جائے؟ ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اس لیے نہیں کہا کہ تمہارا فیصلہ آج ہی سنیں۔ تم غور کرو، ہم وقت دے رہے ہیں، پھر بات ہوگی، تم جا سکتے ہو۔ خان دلاور علی خان نے حقے کا پائپ منہ سے لگا کر گویا زبان بندی کا اشارہ دیا۔ تیمور علی خان نے بے بسی سے باپ کو دیکھا، پھر ایک گہری سانس کھینچ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ انہیں ایسا لگا جیسے صبح صحیح کی مصیبت میں اب گھیرے ہوں۔ جی تو چاہ رہا تھا اماں جی کے سامنے جا کر بے تکان بولے، خوب دل کی بھڑاس نکالے، زیادتی اور زیادتی پر دہائی دے۔ اگلے خیال نے سارے جھاگ بٹھا دیے۔ وہ عملی کی دوگلی زندگی، جب ہم بنیاد سے اندر سے ابھی وہ نہیں جو اپنے ظاہر سے دکھائی دیتے ہیں، تو ایسا تو ہو سکتا ہے ابھی تک یہاں عورت اتنی کمزور کچی سمجھی جاتی ہے، جسے ابھی تک خواہش کی تکمیل سے لے کر نسوانی پندار کا نصاب از خود نہیں ہوا، اور قابل بھروسہ بے وقوف جذبات تھی۔ اب یہاں عورت کو وہ اعتماد ہی کہاں دیا گیا ہے؟ اس کی نگرانی کی جاتی کہ وہ خاندان کی عزت پامال تو نہیں کر رہی۔ اسے یہ اعتماد دے کر پروان نہیں چڑھایا جاتا کہ دوسرے اس کی نگرانی کیوں کرے، وہ اپنی نگرانی خود کیوں نہ کرے۔ اسے یہ کیوں نہیں یقین دلایا جاتا کہ سوسائٹی میں حیثیت عزت حاصل کرنے کا اسے بھی اتنا ہی اختیار حق ہے، جتنا مردوں کو عزت نفس اور پندار اس کا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا مرد کا۔ ہم اپنی عورت کو تعلیم دیتے ہیں، اعتبار نہیں دیتے، اس کی نگرانی کرتے، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی طرف سے چوکس رہتے، کہیں کوئی اس میٹھی گولی کو چپکے سے نگل نہ جائے۔ اس کو یہ شعور، یہ مائن کیوں نہیں دیتے کہ وہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کے معاملے تمام خیر خواہوں سے زیادہ محتاط و حساس ہے۔ انسان خود سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا، اس لیے اپنے پندار، اپنی عزت نفس کا معاملہ اس سے بہتر کوئی دوسرا کیسے طے کر سکتا ہے؟ اس حقیقت کا ثبوت و دلیل یہ ہے کہ پھر یہ ذاتی اندھیرے کیوں آتے ہیں؟ خون سے دھاندلی کیوں کرتا ہے؟ نگرانی و پہر کے باوجود دفاعی و فلاحی اداروں کے باہر جھولے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ جیتی جاگتی زندگی کو صفاقی کی بھینٹ چڑھانے سے بچانے کے لیے یہ اقدام کیوں کیے جاتے ہیں؟ تربیت یہ نہیں کہ دوسرے نگرانی کرے، تربیت یہ ہے کہ اپنی نگرانی انسان خود کرے۔ ابھی ہم نے اپنی عورت کو یہ اعتماد نہیں دیا، اس لیے جب چاہیں اسے ننگی گالی دے دیتے ہیں، اس کا حوصلہ توڑ دیتے ہیں، اس کا اعتماد چھین لیتے ہیں۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم اپنی عورت کو پڑھا رہے ہیں، اکیلا نکلنے کی اجازت دے رہے ہیں، اس کی گرد صاف ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور اپنے
शऊर की गर्द पर ध्यान नहीं। जब औरत पर इस तरह के इल्ज़ाम तराशी होती है, हम पहली फुर्सत में यकीन करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हमने अभी तक इस हकीकत को दिल से तस्लीम नहीं किया। ये भी इस कायनात का बाशऊर इंतहाई अहम जुज़ है। ये दोगली ज़िंदगी का अजाब है। हवेली में अभी पुरएतमाद आला तालीम याफ्ता औरत की जगह नहीं बनी, और उस वक्त तक नहीं बनेगी जब तक इधर के मर्द ये अमर तस्लीम नहीं कर लेते कि बाशऊर औरत आम औरत से ज़्यादा मजबूत और साहिब पंदार होती है। ये दोहरी सोच का अजाब है, अंदर की कशमकश का नतीजा है। वो गहरा तज्जिया करते करते अपने कमरे में पहुंच गए थे। कोताही अपनी जगह, हकीकत अपनी जगह। बाबा साहब ने उन्हें नए अजाब का रास्ता दिखाया था। इतनी मुश्किल बात नहायत आसानी से कह गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मिटी हुई बात किस तरह ज़हन से खुरच डालें और पुरसकून हो जाए। ये दिल तो उनकी ताकत से ज़्यादा महसूस हो रही थी। वो इस बात पर पछता रहे थे कि एक उम्र दयारे घर में बसर करने के बाद वो यहाँ आए क्यों। अज़ियत सिलसिलादार बढ़ रही थी। कोई ऐसा हल नहीं था जिससे हालात मामूलात पर आने का इम्कान रोशन हो। वो अब सो नहीं सकते थे। कभी किताबें टटोलने लगते, कभी दरीचे में आन खड़े होते। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड, कमीनी मुतरबा। मुझे खुद उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो डिज़र्व करती है, उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। और वही बात, वो वाकई में ज़िंदा है। खुशी भी हो रही है और एक तरह से दुख भी हो रहा है कि यावर को जब एहसास होगा वो पछताएगा, और इसीलिए वो वाकई में ही पछताया है, काफ़ी ज़्यादा पछताया। उसके साथ अच्छा भी नहीं हुआ। लेकिन खैर, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।